हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। उसके कल के वीडियो में कूलॉम्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस सब को डिफाइन किया हुआ था। उससे आगे का ये एक सीक्वेंस में है, इसलिए अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इसको लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप कूलॉम्स लॉ पहले स्टडी करिए और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, माने फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। Principle of superposition. According to this principle, or according to principle of superposition, total force on any charge due to a number of other charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time. कूलॉम्स लॉ के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी उसके मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग लर्न करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस which are at rest is equal to the vector sum of the forces, total force on any one charge due to all other charges in a system is equal to the vector sum of the forces on that particular charges due to individual charges. इसके लिए ये x y z कोऑर्डिनेट एक्सिस, origin O, let a charge Q0 is placed at this particular location. This is the location of charge Q0. Its position vector from origin is vector R0. Another charge is Q1 whose position vector is R1, charge Q2 whose position vector is R2, charge Q3 whose position vector is R3, and so on. Charge Qn and its position vector is R. In order to find the force on Q0 due to all other charges, that is due to charges Q1, Q2, Q3, Q4 up to Qn, means here we have to calculate force on Q0 due to rest of other charges, which are at rest. For this, the separation between shortest distance between Q1 and Q0, let it is R10. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको आप 11th में लर्न कर चुके हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R10, if force on Q0 due to Q1 is F01, then F01 may be written as K Q0 Q1 by R10 square vector unit vector R10. Similarly, force on Q0 due to Q2 F0 equal to K Q0 Q2 R20 square R20 unit vector equation 2. And in the same way, F03 K Q3 R
V0 स्क्वायर V0 इक्वेशन 3. In the same way, we may write force on Q0 due to Qn F0 n equal to K Q0 Qn is K Q0 Qn by R n0 square R n0 unit vector. In order to find the total force on Q0, total force on Q0, Q1, Q0, this is the force between Q1 and Q0, means force imposed by Q1 on Q2 is F01. और इस फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और इसके लिए इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है. In the same way, charge Q2 imposes force on Q0 is F0. इसकी ये जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी. Similarly, charge Q3 imposes force on Q0 and whose direction is F03. ऐसे ही ये नंबर ऑफ चार्जेस को के लिए हम एक मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्सेस ऑब्जर्व करेंगे. थोड़ा डायग्राम क्लियर हो और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए हमने केवल 3 चार्ज को कंसीडर किया है. और भी चार्जेस होंगे वो सब के लिए ऐसे ही 1 by 1 इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करेंगे और आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. Now total force on Q0 F0 equal to F01 F02 F0n. F0 equal to K Q0 Q1 by R10 square R 10 यूनिट वेक्टर. ऐसे ही Q0 K Q0 Qn by R n0 square R n0 यूनिट. Now total force F0 K Q0 इसको कॉमन है, बाहर ले रखा है, ये आ जाएगा Q1 R10 स्क्वायर वेक्टर R10 यूनिट वेक्टर एंड इन द सेम वे Qn अपॉन R n0 स्क्वायर R यूनिट वेक्टर. ये कॉमन. अब इसको समराइज करें. K की वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q0 कॉमन था तो ये इक्वेशन K Q0 के बजाय Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R10 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R10 प्लस Q2 R20 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R20 प्लस ऐसे ही Q3 फिर ये अप टू Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ Rn0. Above equation may be written as Q0 by 4 pi epsilon naught summation of I varies from 1 to n Qi upon Ri. F0 may be calculated as Q0 upon 4 pi epsilon naught summation of I varies from 1 to n Qi
आर आई जीरो स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर आई जीरो। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टोटल फोर्स एफ जीरो इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई जीरो क्यूब, आर आई जीरो क्यूब पावर 3 वेक्टर आर आई जीरो, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर के लिए आप ये फार्मूला जानते हो कि आर आई जीरो यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर आई जीरो वेक्टर अपॉन मॉड आर आई जीरो।